Hi friends, welcome to NIN Live. I am Dr. Arjit Walia, founder, Course Scholastic. I am linked with education sector for more than a decade now. Course Scholastic aims to facilitate holistic learning by fostering both cognitive and non-cognitive skills among students through its various projects and activities. In the past, we have seen schools are focusing more on holistic development of a child by bringing inclusiveness at least to its curriculum. Today, we have with us Mr. Sanjay from Deshkal Society, who is working to bring inclusiveness in the education sector in various fields and domains. Sanjay ji, we welcome you. First of all, in fact, I express my own gratitude to you for giving this opportunity. And I think so. Okay, it would be good have a learning and building understanding when we will have develop a conversation with you and your STEAM organization. So if you make a preparation for this conversation, so I humbly request kindly to go on and connect, have a conversation with us. बिल्कुल संजय जी, totally. In fact, indeed, it's our pleasure to have an interaction with a person who is working in social sector for more than 25 years now. As we have understood, Deshkal was started in 1995, Yes. and still then it is working in a lot of in different domains. But inclusiveness has been always the essence of it. As we Yes. understand, yeah, as we Yes. understand, I'm I'm from I'm I'm very happy to make this comment. Not one line, but one word. In fact, you summarize the whole the journey of the 25 years of this society in terms of the inclusiveness. So thank you for this beginning. Which can you thank you, say sir. the brief Thank you conclusion so of much the for Deshkan your society? good deeds in social sector. And sir, when we were researching, the first line that took us and made us feel happy was your logo, which says "Knowledge with Practice." We would like you to emphasize more on this line when we say "knowledge with practice." Yes. In fact, this is not the line, but in fact, this is the aim of the Deshkal Society. One, but the most important thing during the journey of the more than the 2 decades, I think so. Okay, I'm satisfied and very much committed to move ahead to connect organically between the practice of knowledge and vice versa. This is important. Why, in fact, I am emphasizing this statement or the misunderstanding you can say of the organization, particularly that developing country or especially in the Indian context. I think so. Okay, if you look at the larger context, the completely disconnect knowledge in terms of the practice and vice versa. So you can say this is a USP in a market language and in the broader philosophical context. Always we believe in praxis, praxis in a philosophical context. And the most important thing, to some extent, we have tried our best to implement at the ground level and in the academic level to transform this mission in terms of the research, in terms of documentation, in terms of social transformation of the disadvantaged marginalized community at the ground level. सर, जब हम लोग उसको देख रहे थे तो इंक्लूसिवनेस की जब हम बात करते हैं, ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है. एजुकेशन में इंक्लूसिवनेस का मतलब ये भी होता है कि जो लोग दिव्यांग हैं उनको भी साथ में पढ़ाया जाए, सब बच्चों के. लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा पहलू है कि जो लोग चाहते हैं पढ़ना बट लेकिन सोशल फैब्रिक के कारण पढ़ नहीं पाते या पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, उनके बारे में आप थोड़ा सा हमको एनलाइटन करें. हमने देखा आपने बिहार में एक गया में आपने एक प्रोजेक्ट भी किया है, जो पायलट प्रोजेक्ट था गया के 2 डिस्ट्रिक्ट में आपने देशकल सोसाइटी ने किया था, जहाँ पे आपने टीचर्स को और वहाँ के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था
उनको भी आपने अपलिफ्ट करके चीज़ें करवाई। तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे उस प्रोजेक्ट के बारे में, और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से इंक्लूसिवनेस एजुकेशन में और किस तरीके से आई जा सकती है और कहाँ-कहाँ पे उसकी ज़रूरत है। ये आपने बहुत रेलेवेंट सवाल आपने किया। दरअसल ये केवल जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे या दिव्यांग बच्चे जो आप कहते हैं, उससे केवल जुड़ा हुआ मामला नहीं है, और ये क्या केवल इससे भी जुड़ा हुआ मामला नहीं है कि जो और भी डिसएडवांटेज कम्युनिटी के बच्चे क्लासरूम में स्कूल में आते हैं और जो उनका एलिनेशन प्रोसेस होता है स्कूल और क्लासरूम में, बल्कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप फिलोसफिकली आप देखिए तो जो एजुकेशन का जो मीनिंग है फिलोसफिकल और थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट में, वो मीनिंग और ऑब्जेक्टिव ही है कि आप कैसे जो वैल्यूज ऑफ इंक्लूसिवनेस है उसकी प्रैक्टिस में, उसकी थिंकिंग में आप उसको ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप केवल ये न देखें कि प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, बल्कि आप ये देखें जो एजुकेशन का डेफिनेशन है और एजुकेशन का जो फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट है उसका कोर वैल्यू जो है और कोर जो कंटेंट है वो इंक्लूसिवनेस है, पहली बात। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप क्लासरूम को देखें, स्कूल को देखें, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। और ये केवल कोई 70-75 साल की बात, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बात नहीं है, बल्कि लगभग 150-200 साल से जिस तरह से स्कूल हमारे यहाँ इवॉल्व हुआ है, उसमें एक तरफ तो जिस लार्जर कॉन्टेक्स्ट में स्कूल के साथ कम्युनिटी को एंगेज किया, स्कूल के साथ पेरेंट को एंगेज किया और स्कूल के साथ जो है बच्चों को एंगेज किया, लेकिन उसी प्रोसेस में उसका पैराडॉक्स कहिए, कॉलरी कहिए, उसका जो डार्क साइड रहा है वो स्कूल के साथ उनका एलिनेशन भी रहा है। अब एक उदाहरण, एक स्टडी मैं आपको कोट करना चाहूंगा जो दिल्ली का बहुत रेपुटेड स्कूल है, बसंत वैली स्कूल। अब जब उनकी डायरेक्टर या प्रिंसिपल जिनको आप कहते हैं, जब उनसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज इस स्कूल का है कि हम इसको कैसे इंक्लूसिव बनाएं। और मैंने कहा कि ये चैलेंज आप कैसे, आप तो एक बहुत वाइडर कॉन्टेक्स्ट में और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ही क्वालिटी टीचर के साथ एक स्कूल ये रन करता है, लेकिन उन्होंने बताया ये कि अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो हमारे यहाँ बच्चे हैं उसमें 20% ऐसे बच्चे हैं जो आमतौर पर डिसएडवांटेज कम्युनिटी से, या जिसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बैकग्राउंड से बच्चे कहते हैं, हमारे यहाँ आते हैं। और उसमें जब एक क्लासरूम में एक जगह जब बच्चे होते हैं तो एक बड़ा चैलेंज और बड़ा सवाल ये होता है कि हम जो लर्निंग ट्रांजेक्शन है क्लासरूम में उसको किस लेवल पर करें जिससे कि अलग अलग बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो एक कलेक्टिव रूप में उसको अंडरस्टैंड कर पाए। उनका कॉग्निटिव, जैसे आपने शुरू में ही कहा, कॉग्निटिव थिंकिंग की बात है, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग की बात करी। मैंने इसलिए बसंत वैली का आपको उदाहरण दिया कि आमतौर पर कॉमन सेंस में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, आप इवन वाइडर कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये माना यह जाता है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज में स्कूल चलते हैं, या जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड होता है, या जिनका टीचर का पुअर क्वालिटी होता है, वहाँ ये चैलेंज है। बहरहाल मैंने ये कहा कि दिल्ली का जो बेस्ट स्कूल है और इंडिया का जो बेस्ट इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली, मैथोलॉजिकली, एजुकेशनली जो बेस्ट स्कूल है वो उनका भी चैलेंज है। इसलिए जहां से आपने बात शुरू किया, जो आपने सवाल किया है, वो सवाल केवल ये रेलेवेंट केवल डिसएडवांटेज बच्चों के लिए नहीं है, या केवल अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड में जहां स्कूल चलते हैं उसके लिए नहीं है, बल्कि अगर ओवरऑल आप कहें आप तो एक ब्रॉडर लेवल पर एक बहुत बड़ा स्ट्रगल वाइडर कॉन्टेक्स्ट में स्कूल के साथ है, क्लासरूम के साथ है, टीचर के साथ है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों के साथ है। ये बात है बिल्कुल ठीक है जी। तो मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूं वालिया जी कि आमतौर पर जो इंक्लूसिवनेस का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है वो बेसिकली फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं
उस बैकग्राउंड में इंक्लूसिवनेस की बातचीत हुई, वो तो बड़ा एपरेंट और बड़ा आप कह सकते हैं क्रूड फॉर्म में चीजें दिखती है कि आप डिफ हैं या आप हेयरिंग आप नहीं कर रहे हैं या ब्लाइंड हैं, इसलिए आपको लगता है क्लासरूम में वो एकोमोडेट नहीं हो सकते हैं और उनके साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एपरेंट और कॉमन सेंस के लेवल पर जो चीजें बहुत ठीक ठाक भी बाहर से दिखती है, वहां भी इंटरनल लेवल पर अगर आप देखिए तो जो हमारी स्टडी है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो दिखाता है कि इंक्लूसिवनेस का समस्या। और ये प्रॉब्लम इस रूप में बातचीत हो रही है कि ये एक प्रॉब्लम के रूप में केवल हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर हम प्रॉब्लम को अगर डीपर लेवल पर समझते हैं और प्रॉब्लम को अगर डीपर लेवल पर अंडरलाइन करते हैं, तो आप समझते हैं कि आप पूरे जो एजुकेशन का जो कंटेंट मटेरियल है, मेथड ऑफ टीचिंग है, टीचर ट्रेनिंग है, उसके सेंटर में इंक्लूसिवनेस आ जाता है, उसके सेंटर में वैल्यू ऑफ इंक्लूसिवनेस आ जाता है, उसके सेंटर में अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंक्लूसिवनेस आ जाता है। सर जैसा आपने एग्जांपल दिया, हिंदुस्तान में और आप दोनों मानेंगे एक बहुत बड़ा सोशल डिवाइड है, एक बहुत बड़ा कैपिटल डिवाइड है। एक तरफ अर्बन सिटीज हैं, एक तरफ रूरल सिटीज है, या एक तरफ रूरल सेक्टर है, एक तरफ अर्बन सेक्टर है। दिल्ली की अगर हम बात करें, यहाँ पर इंक्लूसिवनेस के अलग चैलेंजेस हैं, जो जैसे आपने मेंशन किया बसंत वैली का, कोई दो राय नहीं है कि जो 25% गवर्नमेंट ने कोटा ईडब्ल्यूएस का निर्धारित किया है, उसके अंडर सेम बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ना, और जो बहुत अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में भी उतनी इजीली नहीं आई है। इसके लिए चैलेंजेस टीचर्स को भी होते हैं और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी होते हैं, पेरेंट्स को भी होते हैं, और पेरेंट्स दोनों तरफ के, पेरेंट्स चाहे वो ईडब्ल्यूएस बच्चों के हों या वो पेरेंट्स बाकी बच्चों के हों, सबको कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, जिससे सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि इंक्लूसिवनेस को वो समझें और उसको अपने रोजमर्रा के शेड्यूल में उसके पार्ट बन जाए। लेकिन ये बात तो हुई दिल्ली की। मैं फिर से आपको एक बार दोबारा गया लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि वहां के लिए हम जानना चाहेंगे कि वहां पे आपको क्या क्या लगा, वहां पर ऐसी चीज क्या थी जो एक अलग चैलेंजेस वहां पर क्या दिखे आपको? बहुत 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 रिलेवेंट सवाल किया, लेकिन उसके पहले एक बैकग्राउंड में एक बात हम कह दें कि हमने इसलिए नेशनल लेवल पर और एक बहुत एक सिलेक्टिव स्कूल जो बहुत नोन और बहुत एक तरह से एमिनेंट स्कूल है, इसलिए हमने एग्जाम्पल दिया ताकि आप अपने श्रोताओं को बता सकिए कि ये जो सवाल है कितना गहरा है, ये जो सवाल है कितना मूलभूत है, और वो हमारे श्रोताओं इस बात से इनलाइटेंड हो सके कि मसलन अगर हम गया की बात कर रहे हैं और करेंगे, और आपने सवाल भी किया और उस पर मैं प्रकाश डालूंगा भी, तो ये न समझे कि गया की बात है और एक पर्टिकुलर रीजन की बात है या पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात है, बल्कि वो इस बात को समझे कि जो एजुकेशन का जो फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट है और जो एम है, ये सवाल जो आपने उठाया है ये उससे जुड़ा हुआ है, और उसका जो स्ट्रगल है अगर ग्राउंड लेवल पर है तो टॉप लेवल पर भी है। तो पहली बात तो आपके श्रोताओं को हम इस वाइडर कॉन्टेक्स्ट में हम इनलाइटन करना चाहते थे, इसलिए हमने एक कॉन्टेक्स्ट उदाहरण दिया। अब जो आपने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को आप कहते हैं, हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ है, और उस एक्सपेरिमेंट का जो मैंने कहा कि उस एक्सपेरिमेंट के बैकग्राउंड में जो फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूसिवनेस है, उसमें जो एक्सपेरिमेंट हमारा ये बताता है कि सबसे बड़ा सवाल टीचर का परसेप्शन का है। अब इसको थोड़ा सा हम आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि जब आप क्लासरूम या स्कूल में आप होते हैं, या आप एक जवाबदेही के साथ एक चीज़ों को टेक्स्ट बुक को और लर्निंग को ट्रांजेक्ट करना होता है, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो टीचर स्टूडेंट का पर्सनल रिलेशन या ऑर्गेनिक रिलेशन का स्तर क्या है, और उसी से जुड़ी हुई ये बात है कि आमतौर पर बच्चे जो क्लासरूम में है या जो स्कूल में है, उनकी अवधारणा टीचर के साथ टीचर के बारे में कैसी है। बहरहाल तो हम लोगों ने जब इस एक्सपेरिमेंट को गया में किया, तो सबसे पहले हमने उस अवधारणा को बच्चों की तरफ से भी और टीचर की तरफ से समझने की कोशिश की कि दोनों के बीच में एक मानसिक कॉग्निटिव के स्तर पर, सोशल कॉग्निटिव के स्तर पर और रिलेशन और प्रोसेस के स्तर पर दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा है। और उसमें बड़ा रिवीलिंग फैक्ट आया जो आपके दर्शकों को हम
उस फैक्ट को या फैक्ट फाइंडिंग जिसको आप कहते हैं, रिपोर्ट जब हम कहते हैं तो उसका एक फाइंडिंग्स होता है, तो जो सबसे सेंट्रल फाइंडिंग निकल के आया वो कि वो दोनों का बीच का जो रिलेशन है, आप कह सकते हैं कि हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक सर्टेन काइंड ऑफ बैरियर है, साइलेंस है, और वो एक ऐसा साइलेंस है जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस पर हम बातचीत करने को तैयार नहीं है। वो इसलिए हम लोग बातचीत करने को तैयार नहीं है, जो बड़ा एक एकेडमिक लैंग्वेज में कहते हैं बड़ा इनकन्वीनियंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है उसको मैं एक्सप्लोर आपके सामने करना चाहूँ, और बैरियर क्या है उसके पहले। वो बैरियर ये है या था उस फाइंडिंग में कि आमतौर पर टीचर जिस बैकग्राउंड के बच्चे अभी स्कूल में हैं उसमें लगभग 80% बच्चे शेड्यूल कास्ट से, दलित से, माइनॉरिटी से और ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। हम बड़ा सरप्राइज हुए कि आमतौर पर टीचर की धारणा ये है कि ये बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं, और खासकर दलित बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका जो कॉग्निटिव लेवल है और कॉग्निटिव जो थिंकिंग है, उसकी एबिलिटी ये नहीं है कि जो लर्निंग प्रोसेस क्लासरूम का है उसको कंप्रिहेंड कर सके, उसको लर्न कर सके और उसको अपने अंडरस्टैंडिंग में उतार सके। ये जो धारणा जिसको आप कहते हैं वो बहुत डीप लेवल पर है, लेकिन ये जो आर्टिकुलेशन है, ये आर्टिकुलेशन तो हमारी अंडरस्टैंड हम ये तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग से आर्टिकुलेट किया, लेकिन उसका जो पॉपुलर एक्सप्रेशन है शिक्षकों का जो होता था या होता रहा है, वो ये है कि वो बहुत ही कॉमन सेंस में और बहुत एपरेंट तौर पर इस बात को, जिसको आप कह सकते हैं चलते फिरते कहने में हिचक नहीं होती है कि हाँ आप इन बच्चों पर बात करने आए हैं, अब हमारी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं है और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों सीख समझ सके। लेकिन आप जानते हैं कि ये जिस पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं उनमें वो संस्कार नहीं है, करेक्ट। अब वो जो संस्कार नहीं है, अगर ये संस्कार जो शब्द है, अगर या जो शब्दावली है, उसके जब आप विस्तार में जाते हैं तो मूलतः एक बात निकल के आती है। यहीं पे मैं बात खत्म करूंगा, फिर अगले सवाल कि आपकी तरफ से मैं प्रतीक्षा करूंगा ये कि ये जो लर्निंग है, वो लर्निंग या सीखना जिसको आप कहते हैं, कंप्रेहेंड करना कहते हैं, हेरिडिटरी बेस्ड नोशन ऑफ एडुकेबिलिटी है। क्योंकि किन बच्चों में संस्कार नहीं है, उन बच्चों में नहीं है जो इस बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका ये सोशल बैकग्राउंड है। और संस्कार क्या नहीं है, तो वो संस्कार ये नहीं है कि वो क्लासरूम में जो शिक्षक ट्रांजेक्ट करते हैं उसको लर्न कर सकते हैं। इसका लॉजिकल आउटकम क्या निकलता है कि चूंकि वो जिस बैकग्राउंड में वो बच्चे आते हैं और जिस जो 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 बैरियर उनके सामने उत्पन्न होता है, अगर उसको आप देखें, इसका मतलब ये निकलता है कि जो है उनका हेरिडिटरी बैकग्राउंड है, उस हेरिडिटरी बैकग्राउंड में जो एडुकेबिलिटी का जो नोशन है वो नोशन प्रॉब्लमेटिक है, और वो प्रॉब्लमेटिक इस अर्थ में है कि वो क्लासरूम में लर्न नहीं कर सकते हैं। एंड में मैं ये बात कहना चाहूँ, एक बात और जोड़ना चाहूंगा आपके साथ, ये कि सवाल ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम को देखते कैसे हैं, लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम को ही आप गलत तरह से आर्टिकुलेट कर लें कि अगर बच्चा वो सीख नहीं रहा है और उसको आप इस तरह से समझ लें कि इसलिए सीख नहीं रहा है कि इस बैकग्राउंड से आता है, या इसलिए सीख नहीं रहा है कि इसके माँ बाप ऐसे हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक जो सीखने का जो प्रोसेस है उसको उसी समय आप बंद कर देते हैं। सीखने का जो प्रोसेस है उसको उसी समय आप किल कर देते हैं। और इसमें दोहराने की जरूरत नहीं है कि एक बार अगर बिगिनिंग में किसी बच्चा को पहले ही अगर आप डिमोरलाइज कर देते हैं, डिस्करेज कर देते हैं, करेक्ट, तो नॉर्मल कोर्स में जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं, उसको भी आप खत्म कर देते हैं। और वो केवल खत्म क्लासरूम के लेवल पर नहीं होता है, केवल खत्म एलिनेशन के लेवल पर क्लासरूम से नहीं होता, बल्कि उसका इंपैक्ट जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बहुत लंबे फ्यूचर पर रहता है। और एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कहूंगा कि जो भारत का जो सिटीजनशिप
बनाने में स्कूल की भूमिका है। एक तरह से कहीं न कहीं सिटीजनशिप जो एक बहुत डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप की भूमिका से उन बच्चों को स्कूल से निकलना चाहिए, उसको भी आप क्रिपल्ड कर देते हैं। इसलिए वर्तमान केवल प्रभावित नहीं होता बल्कि गहरे तौर पर भारत का भविष्य भी प्रभावित होता है। संजीव जी, आप जो आपने बात बोला, मैं उसके हर एक बात से आपकी सहमत हूं। और ये भी, इसको थोड़ा सा मैं अगर आगे एडअप करूं, तो जैसे आपने जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके आपने हमको इन्फॉर्म किया है उस अपने प्रोजेक्ट के बारे में, आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में कई लोग थोड़ा बात करने में झिझकते हैं, नहीं करते हैं, सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे। पर लेकिन ये एक सच्चाई दिल्ली के स्कूलों में भी है। यहाँ पर भी जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे पढ़ते हैं, अफेक्टिवली हम माने या ना माने, उनके घर में भी वो जो स्कूल की पढ़ाई है, जो माहौल है, जो घर का माहौल है, उसमें बहुत फर्क है। जो आप संस्कार कह रहे थे, उसको मैं माहौल का नाम देता हूँ। माहौल फर्क है। उस टीचिंग को घर के थ्रू सपोर्ट अगर नहीं मिल पाता, तो उनके अंदर वो गैप आना शुरू हो जाता है, और वो गैप की वजह से एलियनेशन यहाँ पर भी आता है। ये हमने यहाँ पर भी देखा है वो चीज, कि स्कूल में कुछ बच्चे ने पढ़ा, वहां पर घर में गया, घर में वो सपोर्ट उसको नहीं मिला। इंग्लिश की बात अगर हम करें, तो घर में वो इंग्लिश का माहौल नहीं है, वो बात नहीं कर पाया, थोड़ा सा आगे क्लास में बढ़कर गया, उसके बोलने के तरीके में, बाकी के तरीके में एक फर्क आ गया। देखा जाए तो वो एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, भाषा का तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा ऊपर नीचे हो भी तो भी चल जाता है। लेकिन बच्चे को ये बात कौन समझाएगा इफेक्टिवली, क्योंकि बच्चे ने समझी नहीं, उसके मन में बात बैठ गई कि मैं ऐसा हूँ, मैं वो उस तरीके से नहीं बोल पाता, और धीरे करके एलियनेशन आनी शुरू हो गई, और जो सोसाइटी का पार्ट बन गया। एग्री, ये प्रॉब्लम वहां भी है और यहाँ भी है। अब इसके सॉल्यूशन पे थोड़ा सा अगर हम आपसे जानना चाहें, आपको क्या लगता है कि इसका सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन आपके हिसाब से इसका क्या हो सकता है? क्योंकि ये एक बहुत एक मूलभूत समस्या है जो जो है, इसको अगर हम आंखें बंद करेंगे तो ये भागेगी नहीं, ये रहेगी। और इसका, आप जिस फील्ड में काम करते हैं, जितने स्ट्रांगली आप लिंक्ड हैं, आई थिंक आपसे बेटर इसका आंसर कोई शायद नहीं दे पाएगा। तो हम जानना चाहेंगे आपके हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। हाँ। नहीं, ये तो बड़ा रिलेवेंट सवाल किया, और मैंने कहा जहां से आपने बात शुरू की और आपने ही पॉइंट आउट किया, और हमने कहा कि मेरा सिग्नेचर भी नॉलेज विद प्रैक्टिस, करेक्ट। तो अभी तक हम लोग बात प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज की बात कर रहे थे या कर रहे हैं। अब आपने वो सवाल किया और नब छुआ प्रैक्टिस की बात, और इसे ये समझ में आता है कि भारत में रिफॉर्म की जो बात आप करते हैं, चाहे स्कूल की बात करें, चाहे आप किसी और संस्थाओं की बात करें, उसमें ये नॉलेज विद प्रैक्टिस कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप एक फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में, मैंने शुरू में कहा, एक बार रिपीट आपके श्रोताओं के सामने करना चाहते हैं, इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। प्रैक्टिस मतलब फिलॉसफी और थियरी, सॉरी, फिलॉसफी और प्रैक्टिस का जो एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बनता है, उसको प्रैक्टिस आप मानते हैं। उसका एक पॉपुलर वर्जन हम लोगों ने नॉलेज विद प्रैक्टिस रखा है। और इसीलिए देखिए, जब आप प्रॉब्लम की बात हम लोग कर रहे थे एक नॉलेज के अर्थ में, करेक्ट, तो कितना रेलेवेंट प्रैक्टिस की बात आ गई, और आपने उसी सवाल को आपने रखा, और बहुत रेलेवेंट सवाल आपने रखा। देखिए, ये सवाल जितना रेलेवेंट है उतना ही डिफिकल्ट है। इसमें एक कॉन्टेक्स्ट, पहले बैकग्राउंड मैं आपको दे दूं। आप देख रहे होंगे हमारी बातचीत में सीधे 1 2 3 लीनियर इसको आप आंसर करते हैं, मैं कर पाने की स्थिति में नहीं अपने को पा रहा हूं, बल्कि बार बार मैं उस कॉम्प्लेक्सिटी को और उस कॉन्टेक्स्ट को आपके श्रोताओं को हम बताना चाहते हैं। और उसमें जो एक इंडिकेशन निकल रहा है, इन्फ्लुएंस निकल रहा है, मैं समझता हूं कि उस इंडिकेशन को मैं आपके श्रोताओं के सामने रखना चाह पा रहा हूं। इसी कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल को अगर हम रिफॉर्म के अर्थ में जब हम देख पाते हैं, प्रैक्टिस के अर्थ में देख पाते हैं, तो रेलेवेंट भी है और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात, उसके पहले मैं केवल और कह दूं आपको कि जो जिसको आप सोल्यूशन कहें, या जिसको आप चेंज कहें, या जिसको आप रिफॉर्म कहें, करेक्ट, उसमें ये स्कूल टू स्कूल वैरी करता है, और बच्चा टू बच्चा वैरी, चाइल्ड टू चाइल्ड वैरी करता है। इसलिए हम आपके श्रोताओं के कहना चाहेंगे कि जो बिंदु मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो ये ना मान ले कि कोई कैप्सूल है। पहली बात ये, अब हमारे जो अनुभव समझ, जो परिवर्तन के वहां बने और जो चेंज का बना, उसको बिंदुवार 3 बात को मैं रखना चाहूंगा। पहला, और
ऐसी कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसमें कि आपके श्रोताओं आमतौर पर उससे परिचित नहीं होंगे, लेकिन उन श्रोताओं को रिमाइंड हम ये केवल करना चाहेंगे कि इन 3 बिंदुओं को इतना सामान्य स्तर पर भी होने के बाद हमारे क्लासरूम में या स्कूल में वो प्रयोग इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो माइंडसेट का बैरियर है जिस प्रॉब्लम की बात हमने की। पहला काम हमने उस स्कूल में हम लोगों ने ये किया, और महत्वपूर्ण काम ये था कि जो बच्चों का जो क्लासरूम में बच्चों के बैठने का एक सिस्टम है उसको हम लोगों ने बुनियादी तौर पर बदला, और बहुत सामान्य ढंग से बदला कि उसको एक ग्रुप फॉर्म हम लोगों ने किया। मान लिया जाए कि अगर 48 बच्चे क्लासरूम में है, एक इमेजिन करें जो आमतौर पर होते हैं भारत के स्कूलों में, और हमारी जहां जो मैं प्रयोग कर रहा था गया जिला के उनके स्कूलों में एक क्लासरूम में आमतौर पर 45-48 बच्चे होते हैं, तो उसमें 12 ग्रुप हम लोगों ने बनाया, और उस ग्रुप बनाने में हम लोगों ने ये समझ रखी कि अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे उस ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करें। तो एक काम तो पहला ये अपने जो इसको आप कहते हैं कि ग्रुपिंग बच्चों का करने का जो है क्लासरूम में जो है एक प्रोसेस शुरू किया। एक दूसरा हम लोगों ने ये किया कि शिक्षकों को कि आप जो लेसन देते हैं, ठीक है, मान लिया एक तालाब है, ठीक है, और वो आपके सोशल साइंस के इन्वायरमेंटल स्टडी जिसको कहते हैं उसमें एक चैप्टर है, तो आप केवल अपने क्लासरूम में उस तालाब के बारे में जो रूपरेखा है या जो लेसन पार्ट है उसको आप ना रखें, बल्कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्कूल के बगल में जो तालाब बना हुआ है और उस गांव में जहां से बच्चे आते हैं उस गांव में जो 3 तालाब बने हैं या 2 तालाब हैं, मैंने शिक्षकों को कहा कि वहां उन बच्चों को आप ले जाएं, और जब वहां उन बच्चों को आप ले जाएं और वहां तालाब के बारे में आप जानकारी दें और उस पर बातचीत बच्चों के साथ करें, तो मुझे लगता है लर्निंग का एक नया डायमेंशन खुलता है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा वो मैं आपको कहूंगा। तीसरा डायमेंशन हम लोगों ने ये किया कि इन बैकग्राउंड के बच्चे जिस क्राफ्ट जिसको आप कहते हैं कि जिन चीजों से घरों में जिन चीजों को मटेरियल क्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप क्यों नहीं उस मटेरियल को जो एक्स्ट्रा करिकुलम कहते हैं उसको आप इस्तेमाल करें, उन बच्चों से आप आग्रह करें और आप क्राफ्ट रखें जिसमें तालाब। तो ग्रुपिंग की जो बात हमने की और ग्रुप का जो उसको इम्पैक्ट दिखा उसका असर शिक्षकों ने देखा। जब तालाब गांव में ले गए और तालाब में जो मछली के बारे में, पानी के बारे में, तालाब में तैरने के बारे में शिक्षक अचंभित हो गए कि कई बार वो बच्चे जिनकी उम्र 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल थी, जो कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों का 6 से 14 साल के बीच की उम्र होती है, कई बार शिक्षक अचंभित होता था कि मछलियों के बारे में, पानी के रंग के बारे में जितनी जानकारी उन बच्चों की थी शिक्षकों को नहीं थी। करेक्ट। जो पाठ में तालाब का जो पाठ इन्वायरमेंटल स्टडीज में डाला हुआ था उसमें भी कुछ ऐसी चीजें थी कि जो बच्चे जानकारी दे पा रहे थे वो उस पाठ में नहीं था। एक दूसरी बात हुई क्राफ्ट जो है, जब बच्चों को वो अवसर शिक्षकों ने दिया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है, मटेरियल कहां से दे सकते हैं। हमने कहा कि आप उनके आसपास में घरों में देखें कि किस चीज से वो क्राफ्ट बनाते हैं। वो बहुत सोची चीज आप सब जानते हैं, मिट्टी से बनाते थे। और आसपास स्कूल में जो बगल का जो खाली जगह है या जिसको आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड है, आसानी से वो मिट्टी अगर उपलब्ध है जो हो जाता है गांव के स्कूलों में, फिर केवल एक्स्ट्रा करिकुलम में ऐसे ऐसे क्राफ्ट उन्होंने बनाए कि बाद में उसका एग्जीबिशन गया जिला में लगाया गया और पूरे गया जिला, यस हाँ, वो आपका फोटोग्राफी में भेज सकता हूं। और लोग चकित ये हो पाते थे कि ऐसी छोटी चीज ध्यान क्यों नहीं गया, वो मिट्टी की चीज तो बनाते स्कूल में आता, क्या क्यों नहीं किया। गांव में तो बगल का तालाब है, मछलियां हैं, उसके साथ जो चैप्टर लेसन में डाला हुआ उसकी चर्चा क्यों नहीं की गई। करेक्ट। और ये जो ग्रुपिंग है, जो एक क्लास में 4-4 बच्चों की ग्रुपिंग जो बड़ा कॉमन है, और खासकर जो प्राइवेट एडेड स्कूल में तो कॉमन हुआ है, खासकर नर्सरी में, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट स्कूल में आप देखेंगे तो ये सिस्टम नहीं बना है। तो वह कितनी छोटी बात ग्रुप बनाने में इसमें क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका माने क्या है, इसका इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ये पड़ा कि आप
इसे क्या अप्रोच निकला, वो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा। अप्रोच ये निकलता है कि अगर आप स्कूल रिफॉर्म की बात करते हैं, उसमें दो बात को आपको बहुत ही डिसिप्लिन के तौर पर अपने लेवल पर स्ट्रिक्ट करना होगा। पहला, आप ऐसी कोई बात ना करें स्कूल में या शिक्षकों के साथ, या जो स्कूल को जो चलाने वाली टीम है, जिसको आप शिक्षक कहें, मास्टर कहें, मैनेजमेंट कहें, जिसमें उनको ये महसूस हो कि आप उनको प्रीच करने आए। ठीक है, आप जो कहना चाहते हैं वो बैकग्राउंड में हो, और जो करना चाहते हैं वो एपरेंट उनको दिखे। आप उसमें एक अंडरस्टैंडिंग बनाए कि भाई तालाब है, क्या संभव है कि स्कूल बगल के तालाब में, गांव के तालाब में वो बच्चे वहां ले जा सकते हैं और वहां बातचीत हो सकती है। अब ये एक ऐसा सवाल था कि उनके दिमाग में आया, क्या इसमें ऐसी कौन चीज है, चलिए बगल के तालाब में चलते हैं, वहां बातचीत करेंगे। लेकिन उनकी इतनी छोटी होने के बाद भी अभी तक कभी किसी ने इस प्रोसेस को शुरू नहीं किया था, और ना ही वो मेथड ऑफ टीचिंग जिसको आप कहते हैं उसमें ऐसी छोटी चीजें जो बहुत बुनियादी और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं से वो अवेयर थे और एक्सपोज थे, जिस वजह से वो इस बात को, इसके बात का क्या महत्व है वो समझते हैं। मिट्टी की बात हमने कही, तो मैं अंडरलाइन जो कहना चाहता हूं कि एक तो सावधानी है कि आप प्रीच ना करें, बल्कि प्रैक्टिस को इधर से आप ट्रांसलेट करें, ट्रांसफॉर्म करें, जिसमें उनको बराबर ये लगे कि आप उनके सहयोगी हैं, बराबर ये लगे कि वो और आप जो है संवाद कर रहे हैं। एंड में इस सवाल के संदर्भ में हम चूंकि बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और हमको लगता है कि बार बार जो स्कूल को समझने का एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट है या थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत जैसे देश में उसे इक्वली इंपॉर्टेंट, कई बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतनी छोटी छोटी चीजों अगर स्कूल में इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, इसका मतलब है कि प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको ट्रांसलेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी बैकग्राउंड में एक बात तो मैंने प्रीच वाली बात कही, और दूसरी बात कि बराबर ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब स्कूल में ऐसी चीजों में बदलाव लाते हैं तो स्कूल और जो स्कूल का इन्वायरमेंट है, जो आसपास, जिसको गांव कहिए, जो हैबिटेट बनता है, जिसको हैबिटेट आप बना दे, इसमें गांव है, स्कूल है, तालाब है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, बागीचा है, इनके बीच से ही वो संभावनाएं आपको निकालनी पड़ेगी, इनके बीच से ही इतिहास की संभावनाएं निकालनी पड़ेगी, इनके बीच से ही सिटीजनशिप को संभावनाएं निकालनी पड़ेगी, इनके बीच से ही ज्योग्राफी निकालना होगा, इनके बीच से इन्वायरमेंट निकालना होगा, और अंतिम बात जो चकित करता है कि इनके बीच से इतना तो मैं कह सकता हूं, अपर प्राइमरी मतलब 8वीं क्लास तक साइंस भी निकलता है और मैथमेटिक्स भी निकलता है। सर लाइफ स्किल्स, यस, मैथमेटिक्स और साइंस में निकलता है, हम उसको बहुत एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका करिकुलम और टेक्स्ट बुक है, उसको जो स्कूल का जो हैबिटेट है, अगर केवल शिक्षकों को लिंक करने का एक प्रोसेस बना दे तो एक बड़ी संभावनाएं बन के आती है। और अंत में भारत जैसे स्कूल में एक बड़ा सवाल, जब आप स्कूल में गांव के स्कूल में, कस्बे के स्कूल में आप काम करते हैं, तो पहला सवाल ये आता है कि ये जो परियोजना है या प्रोजेक्ट है या जो बदलाव चाहते हैं उसमें रिसोर्स क्या इन्वॉल्व है। मेरे पूरे प्रयोग में जो फाइंडिंग रही और जो नॉलेज विद प्रैक्टिस जिसकी बात अब हम लोग कर रहे हैं, उसका जो रूपांतरण हुआ स्कूल में, उसमें कहीं से भी मिनिमम रिसोर्स की जरूरत नहीं थी, कहीं से भी अलग से कोई जिसको आप कहते हैं कि फाइनेंस को मैनेज करने का या फाइनेंस की अलग से व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं थी। इन सारी चीजों में दो चीज की जरूरत थी, एक कि हम माइंडसेट कैसे बदलें, इसको मेथड आप कह सकते हैं, और दूसरा कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस हैबिटेट में, जिसके सेंटर में स्कूल है, उसको हम कैसे यूज करें जो उनके करिकुलम, टेक्स्ट बुक और लर्निंग साथ जुड़ सके। जी, आप बात बिल्कुल सही बात बोली। इसको थोड़ा सा मैं अगर और ब्रॉड आगे लेके जा रहा हूँ, तो गवर्नमेंट की जो NEP 2020 पॉलिसी है, वो भी मोटा इन्हीं बातों के ऊपर कि उनका बेस ये बातें ही हैं, जिसमें आर्ट एजुकेशन पे बहुत फोकस है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बहुत फोकस है, और डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फोकस है, और उसमें भी इन सब चीज़ों के सब विषय पे कि आप आसपास की चीज़ों से बच्चे के पढ़ाई
को एक्सपीरियंस को बेटर बनाए, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट आए उसको करने में और पढ़ने में। तो वो मैं समझता हूँ अगर, लेकिन पॉइंट वही है कि नॉलेज है, प्रैक्टिस जब तक उसकी नहीं होगी तब तक वो सिर्फ एक किताबों में छपे हुए बड़े बड़े जार्गन्स के रूप में रह जाएगा। तो ये आर्ट एजुकेशन बहुत टाइम से बात हो रही है और थैंकफुली अब इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है उसकी। मैं चाहूंगा कि वो इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आप हैं और बहुत सारे जो और भी एनजीओ हैं, वो सब उसमें अपना फोकस करके उसको गांव हर कोने में देश के लेके जाएं और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एक बेस बनाएं, ताकि खाली सिर्फ साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी यही सब्जेक्ट नहीं, लाइफ स्किल्स के ऊपर भी बहुत फोकस रहे और बच्चा को मालूम पड़े कि कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, इन सब की वैल्यू क्या है उसकी जिंदगी में एक्टिवली। इसको छोड़ के हम एक नए टॉपिक पे आपसे बात करना चाहेंगे, जो है होमस्टेड लैंड राइट्स। हमने देखा था आपके उसमें भी काफी काम किया है आपके एनजीओ ने। थोड़ा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को, हमारे ऑडियंस को आप एनलाइटन करें प्लीज। एक तो जो आपने टर्मिनोलॉजी या कैटेगरी यूज किया, होम स्ट्रीट लैंड राइट, आमतौर पर हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं और आपके श्रोताओं को भी एड्रेस करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो तुरंत कनेक्ट नहीं हो पाता है कि इसका मतलब क्या है। लेकिन इसका बहुत सिंपल मतलब ये है कि जो लैंडलेस लेबर हैं और जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी से हैं, ठीक है, तो सरकार की जवाबदेही बनती है कि जिस जगह पर वो बसे हैं उसमें उनको अधिकार मिले। लेकिन आप जानते हैं जो लैंड का क्वेश्चन है वो स्टेट का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसके कानून बने हैं, लेकिन बिहार पहला राज्य था या है जिसने 1949 में कानून बनाया कि जो लैंडलेस हैं और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बैकग्राउंड से आते हैं और अगर किसी जमीन पर वो बसे हैं, बसे का मतलब घर है, वासभूमि, होम स्ट्रीट लैंड का अगर हिंदी अगर आप करें तो एक मोटे तौर पर वासभूमि उसकी हम लोगों ने हिंदी की है उसकी। तो ये बिहार सरकार, इस सरकार का ये कानूनी जवाबदेही बनती है कि उस पर उसका अधिकार पट्टा दे। तो अधिकार का जो टर्मिनोलॉजी है, जो कागज मिलता है वो पट्टा मिलता है, और ये 1949 में बिहार सरकार ने कानून बनाया था। लेकिन जब हम लोगों ने गया जिला में 2008 में इस काम को शुरू किया और जब हमने सर्वे किया तो सर्वे में 20,000 परिवारों से 5 मोटे तौर पर सवाल हमने पूछे, आप कब बसे, पट्टा है या नहीं है, पट्टा लेने की प्रक्रिया में आपको क्या चुनौतियां आई और कितने लोगों को पट्टे मिले। मुझे जान के आश्चर्य ये हुआ कि 20,000 में केवल 3,000 ही ऐसे परिवार थे जो 70 साल के बाद पट्टा मिला था। लेकिन उनसे ज्यादा आश्चर्य हम आपके श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि इन सब की जानकारी कोई भी जिला में भारत में अगर आप लें तो आमतौर पर आधिकारिक वक्तव्य डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिसको जिलाधिकारी कहते हैं माना जाता है। और उस समय के गया जिला तत्कालीन जिलाधिकारी से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि इसके जो कंसर्न अथॉरिटी से मैं आपको रिकॉर्ड देखकर बताता हूं कि कितने लोगों को पट्टा मिला है। उनके रिकॉर्ड में 646 लोग ऐसे थे जिनको पट्टा नहीं था, और हमारा जो सर्वे था 20,000 में लगभग 17,000 लोग थे जिनको पट्टा नहीं था। पहला तो ये है जो इस काम में कि जो डेटा है, जो सरकार का डेटा है और जो जमीन जो 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 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा निकल के गया देश का, सोसाइटी का, उसमें एक वाइडन गैप था। अब ये आप कहेंगे कि सरकार जो है डेटा को छिपा लेती है, आप इसके तहकीकात में जाएं तो ऐसी बात नहीं है। हमने फिर जब अपनी जानकारी उनके सामने रखी कि हमारा आंकड़ा ये कहता, और हमने गांव जाकर घर से हाउस होल्ड सर्विस को कहते हैं उससे बात के आधार पर निकली है, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, उन्होंने ये डिनाई नहीं किया कि डेटा गलत है। आमतौर पर भारत में जब 2 तरह के आंकड़े आते हैं, ठीक है, तो पहली डिफरेंस यहां शुरू हो जाते हैं जहां डायलॉग क्लोज हो जाता है कि हम सही हैं और
आप जिनके सामने डायलॉग कर रहे हैं उनके तरफ से उत्तर आता है कि मैं सही हूं, लेकिन वहां ऐसी कोई बात नहीं। तो एक बड़ा एक तरह से कहीं रचनात्मक स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ हम लोगों की बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि अगर ये आंकड़े हैं तो इस आंकड़ों के आधार पर जो प्रोसेस है पट्टा लेने का, उस प्रक्रिया को अगर आप चलाएं तो जो लोकल प्रशासन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और विलेज लेवल पर, वो ऐसी स्थिति बनाएगी जिसमें कि 17,000 परिवार को पट्टा मिल सके। अब कहिए कि जो आंकड़े जिलाधिकारी के पास जो आते थे, करेक्ट, वो आंकड़े 646 परिवार के आए, वो कैसे आए? उनका ये कहना था कि हम कोई हाउस होल्ड सर्वे नहीं करते हैं, बल्कि पट्टा लेने के लिए जो आवेदन ब्लॉक में लोग देते हैं, उस आवेदन के आधार पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने लोगों को अभी तक पट्टा नहीं मिला है। और मुझे यह लगता है कि पट्टा देने की जो जटिल प्रक्रिया है, उस जटिल प्रक्रिया में लोग आवेदन ही नहीं दे पाते हैं। मतलब पहले ही डिस्करेज्ड है, पहले ही वो भयभीत हैं और पहले ही उनके मन में ये है कि ये संभव नहीं है कि हम प्रखंड में या पंचायत में पट्टा का आवेदन देंगे तो मुझे हासिल होगा। इसके कारण जो है उस प्रक्रिया में वो जाते ही नहीं है, और जब जाते ही नहीं है, आवेदन हमारे यहाँ आता ही नहीं है, और जो आता है केवल गिनती का आधार हुआ है, तो जाहिर है कि हम केवल उसी को कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में जो पहला प्रैक्टिस जो निकल के आया होम स्ट्रीट लैंड के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर ऐसी कोई चीज गवर्नेंस से जो जुड़ा हुआ मामला है, जो आपका राइट है, करेक्ट, और जो डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, करेक्ट, चाहे ये होम स्ट्रीट लैंड पर पट्टा की बात हो, पहली बात ये है कि आप जो समझ हमारी बनी और बहुत महत्वपूर्ण समझ बनी कि गवर्नेंस के सुधार में आपको आंकड़े को सही ढंग से इकट्ठा करने की एक प्रणाली बनानी होगी। और वो कोई ऐसी चीज नहीं है, वो प्रणाली क्या होगी, बहुत सिंपल होगी कि आप उनसे जाकर पूछें, न कि आप अपेक्षा ये करें कि वो आपके पास आकर बताएं। मतलब कि आप हमसे, आप नीम लाइव से हम आपसे बात हो रही है और हम इसमें बहुत ही प्रिविलेज महसूस कर रहे हैं कि आपने हमको आमंत्रित किया और आपने ये अवसर दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक समझ है और आप इसका इंटरव्यू करें, तो दोनों का देखने का नजरिया और दोनों का जुड़ाव का जो नजरिया है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो एक बात तो ये कि जो पट्टा लेने की बात है, आंकड़े की जो बात है, उसको कैसे आप इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने में ये बात भी सच है कि उसमें एक बात और मैं जोड़ दूं, तो एक बात ये हुई, दूसरी बात ये हुई कि ऐसी चीजें अगर आप सफल करना चाहते हैं, जो बहुत बुनियादी बातें लिए मैं आपके श्रोताओं के सामने रखना चाहेंगे, और ये केवल होम स्ट्रीट लैंड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये मैं जो मैंने कहा, ये एक तरह से भारत के गवर्नेंस के रिफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण है। वो है कि जिनकी जरूरत है उनको एक लेवल पर इकट्ठा होना होगा, और वो हम लोगों ने लगभग 600 गांव में, जो 20,000 लोग थे, करेक्ट, उस 600 गांव में एक कमिटी बनाई, और उस कमिटी का नाम हम लोगों ने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रखा, और उस कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में 5 महिलाएं और 5 पुरुषों को रखा, और फिर एक अध्यक्ष बनाया और एक सचिव बनाया। वो जो सीबीओ, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, वो सीबीओ ने ही वो स्थिति पैदा की, और वो अपने अकाउंटेबिलिटी को इस तरह से रखा जिससे कि 2 और 2.5 साल में लगभग 90% हम उसको अचीव कर सके, लगभग 18,000 समथिंग को हम उसको पट्टा दिला सके। तो दूसरी बात जो मैं इसमें अंडरलाइन करना चाहता हूं, और फिर हम चाहेंगे कि आप हमारे सामने सवाल रखें कि ऐसी चीजें अगर आप केवल समझते हैं कि सरकार के पहलकदमी से आप हासिल कर लेंगे तो संभव नहीं है, बल्कि जिनको जरूरत है वहां अगर आप मोबिलाइज करते हैं और वहां उस चीज के लिए एक संगठन बना पाते हैं, करेक्ट, और उसको एक जो बेस्ट पॉसिबल है उसमें ओरिएंट और एडवाइस कर पाते हैं, जो फैसिलिटेट कर पाते हैं, जो देश काल सोसाइटी ने किया, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि न केवल गवर्नेंस का रिफॉर्म होगा, बल्कि वैसी चीज उनका अधिकार है, वो अधिकार भी काफी हद तक उनको हासिल हो पाएगा। लगभग 18,000 पट्टा वो मिल सकता। बिल्कुल सही बात है। ये अगर इसको थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो गवर्नमेंट का या सरकार का जो ढांचा है वो इस तरीके से बना हुआ है कि गांव तक गवर्नमेंट के लोग तो पहुंचे हुए हैं, लेकिन उन तक
वो जो लोगों को, जो उनके लोग, उन गवर्नमेंट के लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए जो आपने जरिया तैयार किया, आई थिंक यही जरूरत है देश में कि एक जरिया बने जो लोगों को, गवर्नमेंट के लोगों तक पहुंचाए और बताए कि ये इनकी जरूरत है, इसके लिए आप ये करें और सरकार वो काम करे। जब तक नीड इस गैप को फुलफिल नहीं किया जाएगा, तब तक ये समस्या रहेगी। और अच्छी बात है कि आपके एनजीओ उसको गैप को फुलफिल कर रही है। अब चलिए, क्योंकि गया की बात हुई है, तो हम गया के साथ में एक आपका बहुत प्रचलित एक आपका फेस्टिवल होता है, इसका नाम है बोध गया ग्लोबल डायलॉग। तो उसको हम जरूर जानना चाहेंगे उसके बारे में। एक तो उसका देशकाल के साथ संबंध किस तरीके से है, और वो क्या है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे उसके बारे में। जो है बोध गया डायलॉग, ग्लोबल डायलॉग, जिसके आई थिंक 2 एडिशन ऑलरेडी हो चुके हैं, और थर्ड शायद आपने इस बार किया है 2020 में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। श्रोताओं को केवल ये बात कहें कि हमने इसका 3 एडिशन किया है बोध गया ग्लोबल डायलॉग का। और ये भी जहाँ से आपने बात शुरू की उसी से मैं जोड़ना चाहूँ, नॉलेज विद प्रैक्टिस से ही जुड़ा हुआ है। और एक बार मैं इस बात को रखना चाहूँगा कि देखिए, बोधिया जब आप कहते हैं तो आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा इमेज आता है बुद्ध का आता है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन और दूसरा जो इमेज ये बनता है कि बुद्ध ने वहां से अटेनमेंट, इनलाइटनमेंट का अटेनमेंट लिया, या ज्ञान, आप मोक्ष आप कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन ज्ञान के बाद बुद्ध ने क्या किया? सारनाथ में जाके 5 शिष्यों को उन्होंने उपदेश दिया। और उपदेश क्या था? उपदेश यही था कि जो ज्ञान है जो उनको प्राप्त हुई है, उन 5 शिष्यों से उन्होंने निवेदन किया, समझाया कि आप इस ज्ञान को परिवर्तन के साथ जोड़ो, आप इस ज्ञान को प्रैक्टिस के साथ जोड़ो। मैंने इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट दिया कि यही नॉलेज विद प्रैक्टिस है। वो बुद्ध भी कर रहे थे और देशकाल भी कर रहा है। और मुझे ये लगा कि देशकाल जो बोधगया के आसपास में काम कर रहा, गया जो बोधगया है वो बोधगया एक ब्लॉक है जो गया जिला का ही पार्ट है। और हमारा जो काम है जिसकी बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो भी गया जिला में ही फैला हुआ है। करेक्ट। बल्कि बहुत बहुत महत्व है। ये तो मगध डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, अगर मगध डिविजन के अंदर आता है तो। और इसके कारण एक तरह से जो भी हमारा प्रैक्टिस है उसका रोज का साबका बोधगया के साथ बनता है। उस शहर में आप जाइए, मंदिर में आप जाइए, जो पिलग्रिमेज आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन होता है जब आप उसी परिवेश में आप वहां आप काम कर रहे हैं। मैंने कहा आपसे कि नॉलेज विद प्रैक्टिस अगर देशकाल का और बुद्ध का भी है, तो मेरे मन में ये बार बार मेरे मन में सवाल ये था, और बहुत बुनियादी सवाल था कि जो आसपास में जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसके बीच में तो काम चल रहा है, शिक्षा के संदर्भ में भी और गवर्नेंस के संदर्भ में, जिसकी दोनों बातें आपने कर ली है। क्या यह संभव है कि बुद्ध का वो ज्ञान जो 2500 साल पहले मिला और जिससे नॉलेज विद प्रैक्टिस का एक तरह से आपके इंडियन कॉन्टेक्स्ट इमर्ज किया, उनके साथ हम एक संवाद बना सकते हैं? क्या हम उनके साथ उस परिवर्तन का जो परिवर्तन बोधगया के आसपास हम कर रहे हैं और जो बोधगया में है, वो दोनों के बीच में कुछ कॉमन लिंक बन सकता है? ये जो एक कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग जिसको आप बोलते हैं, जो हमारी मन में थी, इसी का ये प्रयोग बोधगया ग्लोबल डायलॉग में है। लेकिन मुझे लगता है एक दूसरा सवाल, और बोधगया ग्लोबल डायलॉग को अगर क्वालिफाई करें तो 2 टर्मिनोलॉजी से क्वालिफाई होता है। जब हम कहते हैं बोधगया ग्लोबल डायलॉग, तो नीचे हम उसको क्वालिफाई करते हैं हेरिटेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनलाइटनमेंट। हेरिटेज जो वहाँ बोधगया का जो ऐतिहासिक और विरासत के जो कॉन्टेक्स्ट और पृष्ठभूमि है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आसपास में डेवलपमेंट की बात जो हम लोग कर रहे हैं कि कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक प्रयोग जो वहाँ हो रहा है, बढ़ रहा है, और अंत में हम आप या बुद्ध जिसका अल्टीमेट ज्ञान होता है, जिसको आप इनलाइटनमेंट कहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक कॉमन स्तर पर इसी समझ के साथ इस डायलॉग को प्रयोग करते और इसमें एक बात मैं अंडरलाइन केवल करना चाहूंगा कि जब आप बोधगया कहते हैं तो उसका बैकग्राउंड मैंने रखा, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रखा, कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में हमने रखा। लेकिन एक चीज और जो सिग्निफिकेंट बात है कि बोधगया इटसेल्फ सिग्निफाई द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। करेक्ट। आप अगर यूएस में जाएं और बात कहें कि हम गया से आते हैं, this is my perception, it may be possible, I may be wrong, in fact the American or the European get confused, and I'm not confused. It may be possible he or she asked to you, where is Gaya,
very, but you can say कि in fact I belong to, I hail from the Bodh Gaya. Most of them know in a broader context. Yes, I think so. He belong to, come from the which geographical cultural context where Buddha got enlightened or attainment of enlightenment. इसका मतलब ये है जो हम बहुत पॉपुलर ढंग से कहते हैं कि इस्लाम के, इस्लाम के लिए जो मक्का का स्थान है, एग्जैक्टली बुद्ध का जो है वो स्थान है। मैंने इसलिए बात कही आपको कि मुझे लगा कि ये एक बड़ा अच्छा सूत्र है, जहां की जो ब्रिज है बोध गया के वो हिस्ट्री और जो लोकल हैबिटेट में डेवलपमेंट का और रिफॉर्म का ग्लोबल डायलॉग उसको ब्रिज तो करता ही है और एक स्तर पर करे, लेकिन साथ साथ एक ऐसा स्पेस है जिस स्पेस के माध्यम से हम उस काम को और उस वैल्यूज को और उस इम्पैक्ट को हम एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। हम उन चीजों को भूटान तक पहुंचा सकते हैं, हम उन चीजों को थाईलैंड पहुंचा सकते हैं, हम उन चीजों को अमेरिका में भी जो न्यू बौद्धिस्ट आए हैं वहां तक पहुंचा सकते हैं। और ये इसलिए संभव हुआ, जैसा हमने शुरू में कहा, हम फिर रिपीट करते हैं आपके श्रोताओं को एक तरह से अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए, कि वो एक पोटेंशियल जगह थी जहां की लोकल और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट जोड़ सकते थे। वो एक पोटेंशियल जगह थी जहां हमारा जो मिशन है नॉलेज विद प्रैक्टिस, उसका एक कॉमन ब्रिज बन सकता था। और वो पोटेंशियल जगह थी जहां की जो काम वहां हो रहा है और जो बोध गया का अपना जो महत्व है, वो दोनों को जोड़ के हम एक ग्लोबल आउटरीच बना सकते थे। इसी समझ के साथ हमने ये 3 एडिशन किया और इसी का परिणाम ये है कि केवल इवेंट नहीं है, बल्कि हम बहुत जल्दी आपको दर्शकों को हम जानकारी दें कि बोध गया का जो हेरिटेज, रिलीजन और आर्ट है, उस पर ऑनलाइन कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। और साथ साथ बोध गया में ही हम बोध गया पर एक मल्टीमीडिया हेरिटेज सेंटर हम इनिशिएट इंदिरा गांधी नेशनल कल्चर फॉर आर्ट के साथ बहुत जल्दी मार्च और अप्रैल में हम शुरू करने जा रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, ये तो बहुत खुशी की बात है जी, आपने इसका हमारे यहाँ पे इन्फॉर्म किया है इस चीज़ के बारे में हमारे श्रोताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उसके लिए। संजय जी, एक ये जो नॉलेज विद प्रैक्टिस है, आई थिंक सबसे बड़ा इसका जो यूज है वो हमको दिखता है यहाँ पे पब्लिकेशंस के थ्रू। नॉलेज को प्रैक्टिस के थ्रू यूज करना एक बात, लेकिन उसको स्टैंडर्डाइज कर देना इस तरीके से कि कल को कोई भी हो वो सेम प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट कर सके, ये एक मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप थ्रू योर पब्लिकेशंस यू आर डूइंग इट। वी वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट दैट ऑल्सो। वी वर सीइंग आपकी जो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बुक हैं, एक मार्जिनलाइज्ड सेल्फ और एक आपकी बुक है डायनेमिक्स ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। अगर इन दोनों बुक के बारे में थोड़ा सा आप हमको बता पाएं, दैट विल बी ग्रेट। ये मुझे सबसे खुशी ये हो रही है कि जिस तरह से आपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस को ऑर्डर किया है, वो बिल्कुल जिस देश काल का जो अप्रोच है और जो पर्सपेक्टिव है, जो प्रैक्टिस है, वो बिल्कुल उसके समरूप है। तो एक तो पहले हम उसके लिए आपको शुक्रिया अलग से कहें, और मुझे बहुत आपसे बात करके उस मायने बहुत प्लेजर महसूस हो रहा है कि बहुत एक पर्सपेक्टिव के साथ देश काल को समझ के और आप क्वेश्चन को उसी लीनियर ऑर्डर में आपने फ्रेम किया। जो दोनों किताबों की बात आपने कि उसमें नई किताब जो हमारी है वो मार्जिनलाइज्ड सेल्फ है, और अगर आप उस किताब के कवर को आप देखें तो बड़ा ही एक यूनिक पर्सनालिटी की तस्वीर है, जिसको आमतौर पर आप भारत में लोग जानने लगे। दशरथ मांझी हैं, जिस पर एक फिल्म भी केतन मेहता ने बनाई और जिस फिल्म का नाम है माउंटेन मैन। हाँ, अगर ध्यान में दिलाना चाहूंगा, माउंटेन में 2 साल पहले फिल्म बनी। यस। और वो माउंटेन मैन की कहानी ये है कि 30 साल पहले मसलन की एक रास्ता बनाने के लिए जो छोटी पहाड़ियां जिसको हिलॉक कहते हैं, ठीक है, अपने अथक प्रयास और अदम उत्साह के साथ उसने धीरे धीरे एक व्यक्ति लग के उसने उसको डिगिंग आउट करके एक रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उन्होंने बनाया। वो एक तरह से वो किताब का इंस्पिरेशन इसी माउंटेन मैन से हम लोगों को मिला, लेकिन उससे दो या तीन बहुत बुनियादी बात हम लोग अपने जो किताब के माध्यम से जो रीडर है उनको उनके सामने हम रखना चाहते थे।
पहला तो ये कि ये जो माउंटेन मैन है और जो अदम उत्साह के साथ हिलॉक को काट के उन्होंने रास्ता बनाया, वो दरअसल उस कम्युनिटी से आते हैं जिसको आमतौर पर हम मुसहर कम्युनिटी कहते हैं। और ये माना ये गया 150-200 साल में उनके बारे में धारणा थी। दो धारणाएं थी। एक कि ये एक तरह से अनसिविलाइज्ड है, स्टैटिक है, सोसाइटी बैकवर्ड है, और आमतौर पर अपना जो फूड हैबिट है उस फूड हैबिट में मूलतः वो चूहा जिसको आप बोलते हैं रैट ईटर, जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं, उस पर ये निर्भर है। लेकिन दशरथ मान जी की उस काम से हम लोगों को लगा कि कम्युनिटी के बारे में जो ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। और दो तरह से लगा, एक उनका जो काम हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा, और दूसरा जो ये काम है जो रिफॉर्म और जो वहाँ चेंज जो गया जिला में जिनके बीच में हम कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर वैसे ही यूथ आते हैं, लड़के लड़कियां आते हैं जो उसी कम्युनिटी से आते हैं। तो दोनों स्तर पर लगा कि जो 150-200 साल में जो ये धारणाएं हैं, शहर में, गांव में, कस्बा में, जिला में, ये धारणा अपने आप में मुझे लगता है कि ये एक तरह से धारणा को क्वेश्चन करने की जरूरत है। एक तरह से वो किताब जो मार्जिनलाइज सेल्फ है और उसका जो क्वालिफाइंग स्टेटमेंट है, ये टेल ऑफ ए स्टोरी ऑफ ए रेसिस्टेंस कम्युनिटी, ये धारणा को चुनौती देती है, धारणा को सवाल करती है, और साथ साथ एक नई धारणा को, नई समझ को लाती है। नई समझ क्या, उसको दो बिंदु आपके हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे। एक कि उनमें जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन उसी तरह से उनमें जारी है या होता रहा है जैसे कि आमतौर पर शहरों में या आमतौर पर जो प्रिविलेज बैकग्राउंड में उनमें चेंज होता है। मतलब ये कि उनका नेचर में फर्क हो सकता है, लेकिन उनके भीतर भी काफी चेंज है। मसलन अगर आप उनके 3 पीढ़ी को अगर आप देखें, और जो नई पीढ़ी मान लीजिए जिसकी उम्र आप 18 से 25 आप रखें, और जो पहली पीढ़ी जो 70 से 75 रखें या 60 से 70 रखें, तो आपको दोनों में एक बुनियादी फर्क उनके व्यवहार में, उनकी समझ में, उनके रिलेशनशिप में मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप जो ये मान के चलते हैं कि एक स्टैटिक कम्युनिटी है, आप ये जो मान के चलते हैं कि वो जो अनसिविलाइज्ड कम्युनिटी है, ये या आप ये मान के चलते हैं उनमें परिवर्तन नहीं और एक तरह का आप मुसहर होते हैं, ये अपने आप में क्वेश्चन। दूसरी बात जो सीखने की बात है, ये आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँ कि और केवल सीखने की जरूरत उनके लिए नहीं है जो कि गांव में रहते हैं या कस्बा में रहते हैं, बल्कि उनके लिए भी सीखने की जरूरत है जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और अपने को हाईली एडुकेटेड मानते हैं। वो ये है कि अपने सर्वाइवल के लिए अद्भुत रेजिलियंस कैपेसिटी है। मतलब ये कि अगर आप एक छोटे से भी आप रिसोर्स मुहैया करा दें, उस रिसोर्स मुहैया से जो वो आउटकम निकाल लेते हैं, जो इम्पैक्ट क्रिएट कर लेते हैं, वो अगर आप वैसी जगह पर जो बहुत संपन्न बैकग्राउंड से आते हैं और वहां वो अगर रिसोर्सेज दें, तो उनको ऐसा लगेगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसी रिसोर्सेज से वो ऐसा परिवर्तन ला देंगे जिससे लगता ये है कि जो विजडम है, जो ट्रेडिशनल विजडम है, जो उनका स्किल है, उस स्किल में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने जीवन में और अपने परिवर्तन में एक बड़ा असर पैदा कर देते हैं। और इस आधार पर जो एक कंटेम्पचुअस और प्रेजुडिस धारणा थी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस उदाहरण से जो ये चीजें निकल के आई, हम अपने पाठक को या जो किताब के पाठक बनेंगे उसमें उस वैल्यूज को और उस समझ को हम रखना चाहते हैं, और इसी के अराउंड किताब है। संजय जी, ये जो आपने बताया, ये भी इंक्लूसिवनेस के साथ इसको मैं जोड़ता हूँ कि किसी भी सोसाइटी को चेंज इज इम्पेरेटिव। वी ऑल नो वक्त के साथ सुधार आता है, बदलाव आता है। लोग जब साथ जुड़ते हैं तो उनके नेचर में, उनके काम करने के तरीकों में, उनके समझ में सुधार आता है। तो इंक्लूसिवनेस इसी चीज का आधार है। तो जैसे आपने अपने बुक मार्जिनलाइज्ड सेल्फ के एग्जांपल के थ्रू हमको बताया, और आपने बताया कि जो अब जो पीढ़ी है वो पहले की पीढ़ी से बहुत अलग है। हम होप करते हैं कि इसी तरीके से
जो देश भी हमारा है वो उसी तरीके से बदले, आपके प्रयासों के थ्रू बाकी चीज़ों में भी सुधार आए, और इस सोच के साथ और इस कामना के साथ आपको धन्यवाद देते हुए हम ये चाहेंगे कि आपने जो हमको वक़्त दिया उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, और ये चाहेंगे कि आप अपने इस अच्छे गुड डीड्स को कंटिन्यू करें, और कभी भी आपको किसी भी चीज़ में हमारी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बेझिझक हमको आप याद करें। इतने इस अच्छे कार्य साथ साथ जुड़ के हमें हमेशा खुशी होगी। धन्यवाद संजय जी, आपका वक़्त हाँ, निकालने के लिए। मैं आपने ये समय दिया और इतनी अच्छी बातचीत की, और बातचीत में जो आपने सवाल का क्रम रखा और जो देशकाल की अपनी सोच है और प्रैक्टिस है उसको जिस तरह से आपने रूपांतरित किया, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। और हम ये चाहेंगे कि चूंकि देशकाल एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है, तो नील लाइव और देशकाल मिलकर अगर कुछ कॉमन प्रोग्राम आगे कर सके एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में, तो हम सबों के लिए और उस परिवर्तन और रिफॉर्म के लिए एक वैल्यू एडिशन होगा। अब ये कह के मैं आपको शुक्रिया समय का अदा करता बस समय का अभाव के चक्कर में मन तो नहीं कर रहा बात खत्म करने का आपसे, बट लेकिन कार्य के वक्त इसकी अनुमति नहीं दे रहा है, तो देखेंगे कि अगर दोबारा मौका मिला तो आपको दोबारा से हम चाहेंगे कि दोबारा हमारे कार्यक्रम में फिर से आप आएँ और दर्शकों को अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा और इन्फॉर्म करें। धन्यवाद संजय जी, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया।